Hello students, how are you? Myself Tosif sir. Welcome to the science lecture. We are on unit number 14 sources of energy and today's lecture topic is biogas plant. जैसे कि हमने पहले के लेक्चर में देखा हुआ था, हाइड्रो पावर प्लांट कैसे वर्क करता है, किस एनर्जी का कन्वर्जन किसके अंदर होता है. सो इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी दी बायोगैस प्लांट. खास करके बायोगैस प्लांट का इस्तेमाल, गोबर गैस प्लांट भी इसे कहा जाता है, विलेजेस के अंदर इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है. क्यों? क्योंकि बायोगैस प्लांट के अंदर जो रॉ मटेरियल चाहिए, यानी कि काउ डंग एक्सेट्रा ऑफ प्लांट्स, plant roots, different kind of waste which is produced from our domestic household food. तो ये सारा जो कचरा है उसको हम एक टंकी के अंदर डाल के फिर उसको डाइजेस्ट होने देते हैं और उसमें से जो गैस मिलता है उसे बायोगैस कहते हैं. दिस इज द सिंपल आउटलाइन ऑफ बायोगैस पावर प्लांट. और क्यों इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादातर विलेजेस में किया जाता है. So this is the basic outline of the biogas power plant. Now moving to the diagram of biogas plant. Biogas plant has three sections. Left hand side section is a inlet section. The middle side section is a digester tank, and the right hand side section is a effluents. What is the meaning of this three section? I will tell you. First of all, I will teach you the three section of this biogas plant. The residue of the plants, cow dung, food waste, etc. kind of things are mixing in this chamber, which is called as mixing tank. On the left hand side of this biogas power plant, this kind of wastage are inlet, or else we can call as this is the input side, where this all stuffs gets mixed with each other. And after the mixing, this stuff is called as slurry, which is in a liquid form. Some amount of water is mixed with this slurry, so it is easy to transport from left hand side to middle side. Now moving towards the middle side section. After the mixing of this stuff, the plant residue, cow dung and the food waste come into the digester tank, where it will digest according to the time duration. Means the digestion time is starting from 7 to 8 days to 14 to 15 days according to the plant capacity. If the plant is small, then the digestion time is 7 to 8 days, and if the plant capacity is more, then it will take around 14 to 15 days. Once the slurry is digested inside this tank, then the anaerobic bacteria, which is produced without or in the absence of oxygen. ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर ये स्लरी के अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया जनरेट होते हैं, जो कि इसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं. मतलब जो भी ये कुछ स्टफ है उसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से सिंपलर फॉर्म में लाने का काम करते हैं. एंड एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस the gas is produced, which is a methane gas, and that gas is stored inside the holder, this gas holder tank. And when we need it, or we need to utilize, whenever we need to utilize the gas, we will take it out from this pipeline through the gas outlet. And after that, the slurry gets flushed back to this effluent section. मतलब जो भी बचा कुचा अभी सामान है, which is a प्रोवाइडेड एज अ गुड मैन्योर, अच्छा खाद जिसे हम खेतों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो प्रोड्यूस होता है उसे इस राइट हैंड साइड के सेक्शन के अंदर ले लिया जाता है. सो दिस इज द अल्टीमेटली वर्किंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ बायोगैस प्लांट. आई विल रीड दिस थियरी. Cow dung, various plant materials like residue after harvesting crop, vegetable waste and waste sewage are decomposed in the absence of oxygen to give biogas. इन सभी चीजों का इस्तेमाल बायोगैस बनाने के अंदर किया जाता है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये खास ध्यान में रखिएगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स देयर इज अ नो ऑक्सीजन इनसाइड द डाइजेस्टर टैंक. देन आफ्टर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, इट हैज अ डोम लाइक स्ट्रक्चर बिल्ट विथ ब्रिक्स. ईटों से बनाया हुआ ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है. स्लरी
स्लरी किससे बनी हुई होती है? काउडंग प्लस एनिमल एक्सक्रेटा प्लस वाटर, इससे बनी हुई जो स्लरी है उसको फिर कहां पे भेजा जाता है? डाइजेस्टर के अंदर। एंड इन द डाइजेस्टर, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, the slurry is decomposed. Slurry gradually decomposes and generate methane, CO2, H2 and H2S. मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस होता है। उसमें से जो यूजफुल मीथेन है उसका इस्तेमाल हम करते हैं। बायोगैस इज स्टोर्ड इन गैस टैंक अबव डाइजेस्टर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। फ्रॉम पाइप इट विल टेकन आउट। Let us have some information about the biogas. It contains 75% of methane, which is a prime constitute of biogas. और इसी मीथेन को क्या कहते हैं हम? बायोगैस। एग्जामिनेशन के अंदर जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच गैस इज कॉल्ड एज बायोगैस? सो योर आंसर विल बी मीथेन। इट बर्न्स विदाउट स्मोक। इसको जब आप कंबंशन इसका करवाते हो तो स्मोक इसमें से कोई धुआं उठता नहीं है। इट इज द प्राइम एडवांटेज ऑफ दिस गैस। स्लरी लेफ्ट बिहाइंड इज एक्सीलेंट मैन्योर। जो पीछे ये एफ्लुएंट के फॉर्म में स्लरी बचती है वो एक्सीलेंट मैन्योर है, मतलब खाद है, जिसे हम खेतों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोगैस पावर प्लांट। मूव टुवर्ड्स द अनदर टॉपिक ऑफ द कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, विंड पावर प्लांट। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, वी विल स्टडी अबाउट द विंड पावर प्लांट। विंड पावर प्लांट, एज द नेम सजेस्ट, विंड मीन्स मूविंग एयर। तो मूविंग, अगर कोई भी चीज मूविंग है, जैसा कि हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि कोई भी चीज अगर मूविंग है, मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। सो द काइनेटिक ऑन एनर्जी ऑफ द विंड इज यूज्ड टू डू सम यूजफुल अमाउंट ऑफ वर्क। अब इस काइनेटिक एनर्जी जो है, इस काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल हम किस में करते हैं? वर्क में कन्वर्ट करने के लिए, और उसमें से हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हो, यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में से मैंने ये विंड मिल की जो फिगर है वो यहाँ पे इस्तेमाल में ली है। बेसिकली आई विल टेल यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस विंड मिल, विच काइंड ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन द विंड मिल। सो विंड मिल कंसिस्ट ऑफ one base, tower, blades and generator. These are the prime components of windmill. तो उसमें से जो ये बेस है, ये वाला इसका बेस है। It is a tower which is supporting all the components lies on the top side of windmill. This are 3 blades. ये तीनों की तीनों blades है, और उसके पीछे यहां पे एक चीज लगी हुई होती है जिसको हम कहते हैं जनरेटर। ठीक है, बेस, टावर, ब्लेड्स एंड जनरेटर। जनरेटर क्या काम करता है? जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इस विंड मिल के घूमने की वजह से, उसे स्टोर करके सप्लाई करने का काम जनरेटर करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ विंड मिल। आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट द लेटेस्ट विंड मिल यू कैन गूगल इट इजीली। सुजलॉन विंडमिल आप टेक्स्ट डालेंगे तो गूगल में कई सारी इमेजेस आपको बताएंगे। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट द विंडमिल, कम ओवर टू मी, आई विल टेल यू। ओके, चलिए तो डिस्कस करते हैं अभी विंड पावर प्लांट के वर्किंग के बारे में। फॉर अ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द रोटरी मोशन ऑफ विंडमिल इज यूज्ड टू टर्न टर्बाइन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो जो काइनेटिक एनर्जी है विंड की, वो किस तरीके से हम इस्तेमाल में लेते हैं? तो जो ब्लोइंग विंड है वो सबसे पहले टकराती है ब्लेड्स से, और जैसा कि आपको मालूम है कि ब्लेड्स जो है उसका शेप ऐसा होता है कि उसके ऊपर विंड स्ट्राइक करने की वजह से वो रोटरी मोशन ले लेती है, मतलब वो गोल गोल घूमती है। और उसके साथ कनेक्टेड जो शाफ्ट है वो जनरेटर के साथ भी कनेक्टेड होता है, और वो जनरेटर को भी कैसे घुमाता है? रोटरी मोशन के अंदर। ठीक है, और इसी रोटरी मोशन की वजह से जनरेटर के अंदर क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ विंडमिल। आपको इससे एडवांस में आगे जाएंगे, अगर आप डिप्लोमा करें या तो 12th साइंस के बाद डिग्री में जाए तो उसमें पढ़ने में आता है इसके बारे में। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ के देखते हैं अभी।
single windmill is not utilized to generate power because it is too costly. Why it is too costly? Because सिंगल विंडमिल की जो प्राइस है वो 7 to 8 करोड़ रुपीस की होती है और एक विंडमिल में से इतना पावर भी जनरेट नहीं होता. सो दैट इज वाई we are using number of windmills, more than 5 to 10 number of windmills we are using. If the number of windmills are erected over large area which is known as wind farm. अगर हम एक से ज्यादा विंड टर्बाइंस को या तो विंड मिल्स को बड़ी सी जमीन के ऊपर लगाते हैं और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उस एरिया को कहा जाता है विंड फार्म. एंड जनरली wind farm is very popular to generate electricity with the help of wind. Okay, चलिए. डेनमार्क इज कॉल्ड एज द कंट्री ऑफ विंड्स बिकॉज डेनमार्क के अंदर मोस्ट ऑफली विंड मिल से ही पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और वहां पे कोल, पेट्रोल, डीजल इसका इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं करा जाता इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में. एंड दैट इज वाई इट इज नोन एज कंट्री ऑफ विंड्स. Largest wind energy farm has been established near Kanyakumari in Tamil Nadu and it generates 380 megawatt electricity. 380 megawatt यानी कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी कोई एक सिटी को एक साल बिजली देने में इनफ है. सो ये सबसे बड़ा विंड फार्म जो है वो तमिलनाडु के अंदर आया हुआ है. दिस इज वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. What are the advantages of windmill? First, it is environment friendly because it will not cause any kind of pollution. It just uses the wind and from the wind the electricity will generate it. Second is, it is an efficient source of energy. Efficient source का मतलब क्या होता है कि इसमें से जो मिलने वाला आउटपुट है उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं डेली अप्लायंसेस के अंदर या तो कोई और डोमेस्टिक पर्पस के ऊपर. इसलिए दिस इज द एफिशिएंट सोर्स. एफिशिएंट सोर्स का मतलब यही होता है कि अगर कोई चीज में से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो लेकिन वो उतनी ना हो कि जिसकी हमें चाहिए. अभी आप कोई एक अरेंजमेंट ले और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती हो और वो इलेक्ट्रिसिटी की तादाद कितनी हो कि एलईडी बल्ब जले उतनी, तो इट इज नॉट एफिशिएंट, राइट. चलिए. थर्ड इज नो रिकरिंग एक्सपेंसेस. रिकरिंग का मतलब होता है बार बार आने वाले खर्चे. सो there is a no recurring expenses in the wind power plant. Once you establish the wind mill and then after there is a no certain kind of expenses beside maintenance. Maintenance के अलावा उसके अंदर कोई अलग तरीके का खर्चा नहीं आता. जैसा कि थर्मल पावर प्लांट है तो उसके अंदर कोल हमें कंटिन्यूअसली चाहिए होता है, वाटर हमें कंटिन्यूअसली चाहिए होता है जो कि हमें सप्लाई करना पड़ता है. सो दिस इज द प्राइम एडवांटेज ऑफ विंड पावर प्लांट, नो रिकरिंग एक्सपेंसेस. लिमिटेशंस. What are the limitations of wind power plant? Constant speed of 15 km per hour of wind during entire year is needed. 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पूरे साल रहनी चाहिए. ऐसे प्लेसेस के ऊपर ही आप विंड फार्म एस्टेब्लिश कर सकते हो, वरना जहां पे हवा ही नहीं आती वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी. So this thing we will keep in mind that we need to install the wind farm at the place where the continuous flow of wind is there and the speed of wind is continuously 15 km per hour. Second thing, backup facility is needed when there is no wind. अभी कभी भी विंड घट जाए, हमें मालूम है कि जो विंड की स्पीड है वो घट जाए, तो तभी बैकअप फैसिलिटीज होनी चाहिए. बैकअप फैसिलिटीज का मतलब क्या कि तभी पावर स्टोरेज की कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए कि ताकि जब भी विंड ना हो तो तभी उसमें से जो पावर जनरेटेड हो गया हो, जो पावर जनरेट हो गया हो उसको स्टोर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए. थर्ड इज लार्ज एरिया ऑफ लैंड रिक्वायर. बड़ी तादाद में लैंड की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि विंड मिल की साइज जो है वो बहुत ही बड़ी होती है और उसके लिए जो जमीन चाहिए नियर अबाउट 1 to 2 हेक्टेयर जितनी जमीन स्मॉल विंड फार्म एस्टेब्लिश करने के लिए चाहिए. एंड वी नो that the land price is very huge. Fourth is initial cost is very high. As I already told you that the cost of one wind turbine is 7 to 8 crore rupees, and if you establish more than 10 wind turbines then the cost is nearly 100 crores. Establishment cost is nearly 100 crore rupees. So that is why there are certain limitation with the advantage of this power plant. So that's it for today.
biogas plant and wind power plant. I hope that you enjoy this lecture. We will meet in next lecture. Till that time, stay home, stay safe.